Good afternoon, everybody. And still, we are continuing with the same topic, that is the looping in Python. Last class, we just discussed that any programming language uses three types of statements. One is called sequences or sequential. Second is called conditional, in which we are supposed to take the help of the if and else. And third is considered to be the iteration, that is called loop. So in Python, we are having the two types of loop. One is called for loop and another is called while loop. As far as the for loop is concerned, it is considered to be the counting loop. In for loop, in general languages or in other languages like C, C++ or Java, we are supposed to take the help of the for loop with the different syntax. Like in that, we are also allowed to use the conditions. But in Python, for loop only uses with three values, that is your start, a stop and a step. But looking forward for the while loop today we are going to see the contents of the while loop in the brief, how the while loop is going to be work. So let us see. As far as the while loop is concerned, this is the syntax of your while loop, and within this particular parenthesis we are supposed to put the condition. It is also called conditional loop. Like if we have used here I is equals to 1, so I will be considered as the start value or the initial value, and if we want to print the value of I to till 10 terms, we will have to write like I should be less than equals to 10. This will be the condition. And if we are going to print here I, and then after I is equals to I plus 1. So simple, we are having the four words here. This is the start value. This is the start value. This is the condition. This is the statement. And this is the update or increment. Now see how this particular loop is going to be work. First of all, we want to print the value of I to till 10 terms. So that's why this will be the I, that is the start value. Now this will be the outside from the loop. Only we will have to see with this particular three particular things. Like first of all I, that start with 1. So this will check first whether 1 is below 10 or equals to 10. So I is less than, that means what? If 1 is less than but not equals to 10, still the condition is correct. This will comes down and print the value of I, that will be 1. After printing the value of 1, this will increase the value of I will 1, and now the I will becomes 2. Like 1 is equals to 1 plus 2. You can see this particular statement. This is just doing the two things. It is adding the value of 1 as well as assigning the increased value to the I2. ये दो काम एक साथ कर रहा है. So now the value of I becomes 2, and again this will check whether this particular 2 is below 10 or not. It is below 10 but not equals to 10. Again it will come down and this will print the value of 2. Similarly, this will works for the 10 times. This will works for the 10 times. Like 1 time 3 will also appear, 4 will also appear, 5, 6, 7, 8, 9 until 10 will be print by this. As the value of I will print 10, then the value of I will becomes 11. Again this is going to check whether 11 is below 10 or not. So no. 11 is neither equals to 10 nor equals to 10. That's why the loop will break.
So this is the structure and this is the scenario of your while loop. By this way only this is going to work. Now this was the loop. You can say that this was the loop that works accordingly ascending to descending. That means what? कहते हैं कि जब हमारा इनिशियल वैल्यू छोटा है और कंडीशन हमारा बड़ा है तो दैट टाइप ऑफ लूप इज कंसिडर्ड एज असेंडिंग टू डिसेंडिंग. छोटे वैल्यू से बड़े वैल्यू की तरफ जाता है. इज इट क्लियर टू यू ऑल? नाउ द सेम एग्जांपल, इफ आई एम गोइंग टू राइट हियर I is equals to 10 this time, and if I am using here while I should be greater than equals to 1 this time. अब आप देखो यहां से आपका कंडीशन चेंज हो गया. अभी आपका कंडीशन लेस देन इक्वल्स टू 10 था, अभी आपका कंडीशन हो गया I should be greater than equals to 1. क्यों? Because the initial value was 10. After that, what we have to do, suppose we have to print the value of I, we will print the value of I, and this time I is equals to I minus 1. ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा I के वैल्यू को 1 से. और आप देख सकते हो सेम loop is there, but as far as the result is concerned, this will produce the result in different ways. Like first of all 10 will appear, then 9, then 8, then 7, then 6, then 5, then 4, then 3, then 2, then 1, like this. Got it? कैसे चेक करेगा? तो चेक करेगा क्या 10 1 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, लेकिन बराबर तो नहीं है. आएगा और 10 को प्रिंट करेगा. अभी 10 से फिर एक वैल्यू रिड्यूस होगा एंड द वैल्यू ऑफ I बिकम्स 9. फिर ऊपर जाएगा और चेक करेगा कि क्या 9 1 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, बट बराबर तो नहीं है. 9 को भी प्रिंट करेगा और 9 का वैल्यू अब रिड्यूस करके कर देगा 8. तो इस तरह से जब ये 1 तक प्रिंट करेगा और 1 प्रिंट करने के बाद I का वैल्यू क्या होगा? 0. चेक करेगा क्या 0 1 से बड़ा है? नहीं. क्या 0 1 के बराबर है? नहीं. तो लूप विल ब्रेक देयर. एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. एक क्वेश्चन लिखिए. वी आर गोइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन that write a program in Python to input a number and check whether it's an Armstrong number or not. So children, first of all, what I mean to say, while going to make this program, why we are going to take the help of the loop, that should be also decided by you. Like, first of all, we will have to think that what is the meaning of the Armstrong. How can we decide then that in the above program we will have to use the loop? That is decided by the process of this program. Like an Armstrong numbers are those numbers. Suppose we have input here 153. Suppose this is the digit 153. Armstrong कहता है कि इन सारे डिजिट्स का क्यूब, जैसे 3 का क्यूब कितना होगा? 27. 5 का क्यूब कितना होगा? 125. और 1 का क्यूब कितना होगा? 1. तो while going to calculate this number, you will find 153. So that is why if the result is going to produce like this, then this number will be considered as an Armstrong. तो पहले लॉजिक को समझिए, करना क्या है आपको. यानी हमारा जो डिजिट है, हमारा जो नंबर है, उसके हर एक डिजिट को प्रोग्राम से बाहर लेके आना, फिर उसका क्यूब करना, फिर उसको ऐड करना, और ऐड करने के बाद विद इन द अनदर वेरिएबल वी विल हैव टू चेक कि अगर रिजल्ट वाला वैल्यू और इनपुट किया हुआ वैल्यू दोनों नंबर अगर सिमिलर है, देन द नंबर विल बी कंसिडर्ड एज एन आर्मस्ट्रांग. तो उसके लिए आप क्या करेंगे? व्हाट इज द स्टेप इन पाइथन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इनपुट अ नंबर फर्स्ट. तो लिखते हैं a इज इक्वल्स टू int input enter any number
नंबर को एंट्री कर लिए। अब कुछ वेरिएबल लिखते हैं, b इज इक्वल्स टू 0, c इज इक्वल्स टू 0, d इज इक्वल्स टू 0 एंड e इज इक्वल्स टू 0। देखिए यहां पे b, c, d और e इन सब को 0 लिखने का मतलब है कि जब कभी भी किसी वैल्यू को हम उस पर पास कराएं तो वो वेरिएबल किसी भी तरह का कोई गार्बेज वैल्यू ना रखे। So to avoid the garbage value towards the variables, we are supposed to assign the value 0 towards these particular variables. अब हम लोग while loop के मदद से प्रोग्राम बना रहे हैं और लिखते हैं कि while b should be, सॉरी while, पहले एक ही कॉपी करा दीजिए कहीं किसी दूसरे वेरिएबल में। जैसे मान लीजिए हम लोग यहां लिख देते हैं b इज इक्वल्स टू a। अभी क्यों कॉपी करा रहे हैं? कॉपी क्यों करा रहे हैं? कॉपी इसलिए करा रहे हो आप कि आप जब इस 153 को लेके जाएंगे तो एक समय 153 तो आपका टूटेगा, यानी 153 में केवल और केवल आपका 0 आएगा। तो आप कंपेयर किससे करोगे? तो हमने क्या किया कि टेम्परली इस a के वैल्यू को b में भी कॉपी करा दी और बोलते हैं a शुड बी ग्रेटर देन 0। आप तब तक इस वर्क को करो, तब तक इस काम को करो जब तक a का वैल्यू 0 से बड़ा है। गॉट इट? और अब बोलते हैं, अब यहां पे हम लोग करेंगे क्या? बोलेंगे c इज इक्वल्स टू a मॉड बाई 10। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। पाइथन के अंदर में डिवीजन करने के लिए ये 3 ऑपरेटर का आप इस्तेमाल करते हो। इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल डिवीजन, इसको कहते हैं फ्लोर डिवीजन और इसको कहते हैं मॉड्यूलो या रिमाइंडर। आप किसी भी वैल्यू को अगर डिवाइड कर रहे हो तो इसके साथ आपका क्वोशिएंट और रिमाइंडर दोनों आता है, इसके साथ केवल क्वोशिएंट आता है और इसके साथ रिमाइंडर आता है। तो अभी क्या है ना कि जैसे सपोज कि हमने a का वैल्यू लिया है 153 और अगर इस 153 को आप फर्स्ट टाइम 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 10 1 जा 10 एंड 10 5 जा 50। नाउ यू कैन सी कि दिस पर्टिकुलर मॉड्यूलो इज गोइंग टू रिसीव द 3। आपका 3 आ गया। अभी हम लोगों ने 150, अभी फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? हमने कहा कि c इज इक्वल्स टू a मॉड बाई 10, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a राइट नाउ? दैट इज 153। आप अपने कॉपी पे 153 को 10 से डिवाइड करिए, उसका रिमाइंडर कितना आता है? 3। हमने यहां डिवाइड किया, 10 को 153 से डिवाइड किया हमने, तो इसका क्वोशिएंट पार्ट आ रहा है 15 और इसका रिमाइंडर पार्ट कितना आ रहा है? 3। हमको तो 3 ही चाहिए था, अभी 3 का क्यूब चाहिए। तो क्या करें? d इज इक्वल्स टू d इज इक्वल्स टू c इंटू c, यानी इसका क्यूब आ गया। d के अंदर में अभी 3 का क्यूब आ गया, इसको ऐड भी करना है। तो ऐड करने के लिए क्या किए? e इज इक्वल्स टू e प्लस d, जुड़ता भी चला गया, जुड़ गया। अब क्या है कि अब इस a के वैल्यू को शॉर्ट करना है, यानी एक डिजिट तो हमने ले लिया 3। नाउ वी हैव द नीड ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वोशिएंट दैट इज योर 15। सो फ्रॉम विच डिवीजन वी विल रिसीव द क्वोशिएंट? तो फ्लोर डिवीजन से क्वोशिएंट मिलेगा। तो अभी देखिए यहां पे जाके क्या करें? a इज इक्वल्स टू a फ्लोर बाई 10, a इज इक्वल्स टू a फ्लोर बाई 10। अभी आप समझो, ये आपका क्या है? दिस इज द स्टार्ट वैल्यू, दिस इज योर स्टार्ट वैल्यू, दिस इज योर कंडीशन, दीज आर द स्टेटमेंट। ये आपका क्या है? स्टेटमेंट है। और ये आपका क्या है? दिस इज द अपडेट, ये आपका अपडेट है। यानी इसी 2 का काम है। c इज इक्वल्स टू a मॉड बाई 10 और a इज इक्वल्स टू a फ्लोर बाई 10। यानी ये क्या कर रहा है? उस डिजिट का रिमाइंडर पार्ट दे रहा है
और ये क्या कर रहा है, उस डिजिट का फ्लोर दे रहा है। अब देखिए, अभी फर्स्ट स्टेप में हम यहां तक आ गए, तो इस स्टेप में व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए नाउ, दिस इज 15। चेक करेगा क्या 15 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, नीचे आएगा एंड दिस टाइम द 15 इज गोइंग टू बी डिवाइडेड विद द 10। अब ये 15 को क्या करेगा, 10 से डिवाइड करेगा, तो 10 1 जा 10, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, दैट इज 5। अब 5 कहां आ गया, सी में, तो डी में क्या आ जाएगा, 5 का क्यूब। अभी सी में क्या था, अभी सी में हमारा 27 है, 3 का क्यूब 27 स्टोर कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द क्यूब ऑफ 5, दैट इज योर 125। तो 5 का क्यूब कितना हो गया, 125, और अब क्या हो जाएगा, 27 इज इक्वल्स टू 27 प्लस 125। तो अभी क्या हो रहा है, अभी यहां पे आपका जो E है लिख रहा है 27 इज इक्वल्स टू 27 प्लस 125। चलिए अब ये कितना हो गया, अभी आपका E जो है हो गया 152, तो 152 इज इक्वल्स टू पे रुक गया वो, फिर से कर रहे हैं A इज इक्वल्स टू A फ्लोर बाई 10। तो इस बार क्वेश्चन क्या आया, 1। चेक करेगा क्या 1 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, 1 का मॉड कितना होगा, 1। देखिए नियम ये कहता है कि अगर आप मॉड्यूलो ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हो तो जो भी छोटा वैल्यू यहां है, जैसे मान लो अगर 9 मॉड बाई 10 भी होगा तो ये 9 ही लौटाएगा, 6 मॉड बाई 10 है तो 6 ही लौटाएगा। ह्यूमन बींग्स आर कैपेबल टू असाइन द डेसिमल पॉइंट, लेकिन कंप्यूटर डेसिमल पॉइंट असाइन नहीं आपके लिए नहीं करेगा, जो छोटा वैल्यू है वो लौटाएगा। तो लौटा दिया इसने, कितना लौटाया, 1। अभी क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब कितना होगा, 1, और यहां पे 152 इज इक्वल्स टू 152 प्लस 1 कितना हो गया, 153 है। अब क्या करेगा, A इज इक्वल्स टू A फ्लोर बाई 10, यानी 1 का जो फ्लोर है वो कितना आएगा, 0। चेक करेगा क्या 0 0 से बड़ा है, नहीं, 0 0 से बड़ा नहीं है, लूप विल बी ब्रेक, लूप ब्रेक होगा। लेकिन अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, अभी तो आपने E में एक वैल्यू को कलेक्ट करा है। नाउ यू हैव टू चेक, अब आप रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस करेंगे, आफ्टर कमिंग आउट दिस पर्टिकुलर लूप, इस लूप के बाहर आने के बाद आप चेक करोगे क्या कि इफ E इक्वल्स टू B, याद करिए यहां पे A के वैल्यू को टेम्पोरली हमने B में स्टोर कराया था, तो जो वैल्यू E कंसीव करके लेके आया है अगर वो B के इक्वल्स है, देन वी विल क्लेम कि दैट इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग। तब आप प्रिंट क्या करोगे, प्रिंट यस आर्मस्ट्रॉन्ग, एल्स प्रिंट नो आर्मस्ट्रॉन्ग। Is it okay? Is it okay, everybody? Have you grasped the point? Let me check once again. Once again, I am going to make it clear. First of all, what we have did, we have input a number in A, then we have assigned some variables like B, C, D, E. Then we copied the value of A towards B, and now we have assigned a while loop in which what we write, while A should be greater than 0. And after that we are just going to find the each and every separate digits, एक एक सेपरेट डिजिट को निकालकर हम यहां से उसका क्यूब निकालकर फिर से उसको ऐड कर रहे हैं, और यहां से A के वैल्यू को आप कंट्रोल कर रहे हो। यानी पहले 153 था तो अब ये 15 हो गया, फिर जब ये 15 था तो अब उसका वैल्यू 5 हो गया, और जब फिर उसका वैल्यू 15 से फिर 1 हो गया, और 1 से फिर 0 हो गया, और जैसे ही ये 0 हुआ then the loop will terminates. But ultimately how we will decide that the inputted number is an Armstrong or not? So later on we will have to check with this particular, like if E equals to B, then we will say that the inputted number is an Armstrong, otherwise that is not a part of an Armstrong. Any doubt about that? किसी को कोई दिक्कत या कोई डाउट?
देखो ए को आप कंपेयर कर सकते हो, लेकिन आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि सर ए को डायरेक्ट लेके जा सकते थे। अभी अगर आप ए को प्रिंट करेंगे, अभी आपका ए क्या हो रहा है, अभी सपोज करिए कि ए को आप ए में आपने कंडीशन क्या लगाया कि आप टिल तब तक इसको रोटेट कराओ जब तक कि ए हमारा जीरो ना हो जाए, ए जीरो से बड़ा हो। तो ए तो आपके सामने ए घटते घटते क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जब आप ए के साथ इसको कंपेयर कराइएगा कि इफ ए इक्वल्स टू बी, कभी मैच करेगा, क्योंकि ए तो जीरो हो चुका है। तो इसीलिए हम लोगों ने यहां पे इसको कॉपी कराया है। आप बी के जगह कुछ भी ले सकते हैं, या आप हो सकता है कि आपकी अगर इच्छा है कि हम ए के साथ चले तो यहां बी लिख दीजिए, लेकिन आप इसी के साथ इसको कहीं ना कहीं कॉपी कराना पड़ेगा। जैसे आपने पॉकेट में पैसे लेके मार्केट में आप गए, आपके पैसे खर्च हो गए, तो फिर आपको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सेम वे, दैट इज व्हाई वी हैव चेंज द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम हियर। इज इट क्लियर? यू वांट टू आस्क एनीथिंग? कोई डाउट है? एनीबॉडी? यस। स्टेटमेंट कैसे क्रिएट करें? देखिए, बस हम बताए तो समझ गए। अच्छा ये बताइए कि आप फ्रांस में एक सब्जी बनाई जाती है चीको पतानिया, आपको पता है क्या? नहीं पता है, लेकिन आपको जब बताया जाएगा कि चीको पतानिया बनाने का रेसिपी क्या है, कि शिमला मिर्च को पहले पानी में बॉईल करते हैं, फिर उसके बाद उसका पेस्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद उसमें पनीर वगैरह को मैश करते हैं, और फिर उसको पकौड़ी के जैसा छान लेते हैं और खा लेते हैं। तो अब बना लीजिएगा, लेकिन पहले आपको बताया कि चीको पतानिया क्या होता है, तो कैसे पता था? तो दैट इज वाई सेम थिंग विद द प्रोग्राम्स को सीखने के लिए आप कभी भी आप सोचेंगे कि हम उसको याद करके बना दे, तो नहीं होगा। अब जरा सा एक बात बताइए, मैथ्स में एक टर्म आता है जिसको कहते हैं फिबोनाची। क्या होता है फिबोनाची? कि लास्ट वाले दो डिजिट को ये जोड़ेगा। जैसे 0 और 1 का सम कितना हुआ 1, 1 और 1 का सम कितना हुआ 2, 1 और 2 का सम कितना हुआ 3, 2 और 3 का सम कितना हुआ 5, 3 और 5 का सम कितना हुआ 8, 8 और 5 का सम कितना हुआ 13, 13 और 8 का सम कितना हुआ 21, 21 और 13 का सम कितना हुआ 34, 34 और 21 का सम कितना हुआ 55। तो दिस वे, अब सपोज करिए कि अभी हमने क्वेश्चन दिया कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द फिबोनाची टर्म टिल n टर्म्स या टिल 100 नंबर्स। तो जब तक इफ यू आर नॉट इन द पोजीशन टू नो अबाउट द फिबोनाची, देन हाउ विल यू डू द प्रोसेस? अभी आपकी प्रोसेसिंग चल रही है। प्रोसेसिंग का मतलब ये लूप वही है, हम इससे फैक्टोरियल भी बना रहे हैं, हम इससे फैक्टर भी बना रहे हैं। किचन का गैस का सिलेंडर और किचन वही है, हलवा भी सूजी का बन रहा है, मैदा का कुछ प्रोडक्ट भी बन रहा है, बेसन का हलवा भी बन रहा है, लेकिन सबके बनाने का प्रोसेस अलग है। कल एक एग्जांपल मैंने दिया था कि सपोज व्हाट इज प्रोग्रामिंग। आप प्रोग्रामिंग के बारे में क्या समझते हो? यू नो, each and every person is doing the programming and each and everybody is the programmer. आपके घर से आपके निकलने की जब शुरुआत होती है और रात पे बेड पे जाने तक आपकी प्रोग्रामिंग चलती है। कैसे? सपोज यू वांट टू ज्वाइन द राजधानी कोचिंग टुडे, व्हाट यू डिड? आप अपने घर से निकले, प्लान किए और राजधानी कोचिंग तक आने का जो ट्रैक है, आप उस ट्रैक पर चल के कोचिंग में चले आए। कल को हो सकता है कि आप अपने घर जाना चाहते हैं, तो आप किसी पड़ोसी के घर कैसे नहीं चले जा रहे हैं? आपको पता है, आपका माइंडसेट पता है कि कैसे कैसे हमको काम करना है। एक छोटा बच्चा भी प्रोग्रामर होता है। एक छोटे बच्चे को जब भूख लगती है तो वो क्या करता है? रोता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो क्या करता है? खाने के लिए डिमांड करता है। तो हर व्यक्ति प्रोग्रामर है। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्रामर और दुनिया की सबसे अच्छी प्रोग्रामर हमारी मां होती है। और भी मैं आपको बता दूं कि जब कंप्यूटर को इजाद कर रहे थे, कंप्यूटर्स को जब इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट के साथ लेके जा रहे थे, तो इसमें प्रोग्रामिंग की भी जरूरत थी। और विश्व की पहली जो प्रोग्रामर थी उसका नाम था लेडी एडा लवलैक ऑगस्टा। वो एक फीमेल थी, सोच लीजिए।
और जब तक वो लाइव थी, जब तक वो जीवित थी, किसी को पता नहीं था कि शी इज अ प्रोग्रामर। आफ्टर द डेथ ऑफ लेडी एडा लवलेक, ऑगस्टा, जब उनकी डायरी को चेक करा लोगों ने, तब देखा कि शी वॉज द प्रोग्रामर, और उन्हीं के कॉन्सेप्ट को प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो प्रोग्रामिंग इज अ थॉट्स, प्रोग्रामिंग इज अ थॉट्स, यू कांट प्रेडिक्ट, यू कांट डिसाइड। अब जैसे मान लीजिए हम अभी आपको कहें कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी टू नंबर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कहिएगा कि सर आंख बंद करके लेफ्ट हैंड से बना देंगे। क्यों? क्योंकि इतनी बार उसको आपने बनाया कि यू आर हैविंग अ वेरी गुड हैंड्स ओवर देयर। तो प्रोग्रामिंग कोई एक दिन की चीज नहीं है, ये एक साइकिल है, एक रोटेशन है, जिसपे आपको काम करते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। जैसे हमने आर्मस्ट्रॉन्ग की बात करी, तो आर्मस्ट्रॉन्ग का लॉजिक समझिए। लॉजिक क्या था कि एक डिजिट को लेना, तो डिजिट के लिए हमने इनपुट किया। फिर दूसरा लॉजिक क्या बना वहां पे कि इसके हर एक डिजिट्स को बाहर निकालना है, तो हर एक डिजिट्स को बाहर निकालने के लिए लूप के अंदर उसको लेके गए, और हर एक डिजिट्स को कैसे निकाल रहे थे, तो मॉड से निकाल रहे थे। मॉड से निकालने के बाद बोले उसका क्यूब चाहिए, तो क्यूब करके बना दिए। फिर बोले कि उस क्यूब का भी एडिशन चाहिए, तो एडिशन भी कर दिए। लेकिन फिर वैल्यू को छोटा भी करना था, 153 में 3 को अगर ले लिए तो अब 15 चाहिए था, तो यहां फ्लोर के मदद से उसको छोटा भी कर दिए। अब बात थी कि अल्टीमेटली जब रिजल्ट को कंसीव कर लिए, तो डिसीजन कैसे होगा कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। देन वी चेक द कंडीशनल स्टेटमेंट, वी मेक द कंडीशनल स्टेटमेंट। इसके साथ अगर वो काम कर रहा था तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग था, अगर नहीं कर रहा था तो आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं था। दैट इज क्लियर।